Hi, first of all, my name is Komal Devedi, and I'll be your tutor for English 2. I'll be covering the whole week 1 in just a small video. Just take a pen and paper and note everything down, whatever I'll teach you. Let's start from lecture 1, figure of speech. What is figure of speech? They're the literary devices whose function is to present an idea without directly making a reference to it. What does this means? That figure speeches are literary devices. जब भी हम कोई poems, writings वगैरह पढ़ते हैं तो we come across a lot of words at the end. In poems, there are similar words or the repeating words, right? And in writings also, there are some things, some words which we find rhythmic or rhyming words or matching words. So इन सारे वर्ड्स के लिए ना एक देयर इज अ स्पेसिफिक नेम डिफाइंड दे आर कॉल्ड एज फिगर स्पीचेस आओ देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर स्पीच ये फिगर स्पीच यूजुअली क्रिएटिव राइटिंग में यूज होती है पोएम्स हो गया स्लोगन्स हो गया छोटे छोटे रीडिंग कॉम्प्रहेंशंस हो गया सिमिली सिमिली आर यूज्ड इन द कंपैरिजन ऑफ टू completely unassociated things and ideas. We all have compared our humans to moons, stars, starry nights, beautiful days, roses. Now, what does that mean? Oh, my love is like a red rose. So, you're not comparing your love with some red rose. Red rose and your love is totally a different thing. What is happening? That poet is comparing his love with the beauty of a red rose. Two completely unassociated things. Love is a human, the rose is a flower. I wandered lonely as a cloud. Up, nobody can be lonely as a cloud. Cloud is cloud, and human is a human. Now, what is happening? As clouds in the sky, they roam around. तो उसे ही कहते हैं कि अकेला एक बादल घूम रहा होता है तो उसे हम खुद से कंपेयर करते हैं कि आई एम लोनली एज क्लाउड नाउ फॉर एग्जांपल्स ये एग्जांपल्स रीड कर लेना खुद से मेटाफर नाउ अ मेटाफर इज कंपैरिजन इन व्हिच द वर्ड्स ऑफ द फ्रेज इज यूज्ड इन अ प्लेस of others suggest likeliness or analogy between them. What is happening here? We are comparison in such a word or a phrase in which others suggest likeliness or analogy between them. So there are these kind of words, like in a sentence, we are given a sentence. So there are these kind of words in which they suggest a same likeliness and analogy. Likeliness is like similarities, you can say. When we use a word in a phrase, it does not carry a literal meaning. See, this is the icing on the cake. There is a cake. The cake is a whole good thing. Cake is cake. But still, we are referring a single part, which is the best of all of it. The icing. The icing on the cake. Obviously, cake has no icing, but still we say that there is an icing on the cake, the creamish portion. There is this icing, which is the better part of something. Silence is golden. Silence is silence and gold is gold. But still, we are referring a single word to a worthy thing. We are putting worth to it. This is happening in metaphor, like a type of comparison in which a word or a phrase is used in place of others suggest likeliness or analogy between them. यहाँ पे silence is being compared to gold एक likeliness और एक analogy दिखाने के लिए कि gold is as worthy as the silence. Icing on the cake is as worthy as the whole cake. Okay. So examples खुद से read कर लेना. Then it comes the personification. Personification is the idea of human attribute. जब हम किसी भी prose, किसी भी poem, किसी भी writing में human personification दे रहे हैं, एक personify कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, एक human image से. See, when I say that a pen is my best friend, इसका मतलब ये नहीं है कि एक pen मेरा best friend हो जाता है. It is not happening. But still we are giving it human attribute to a pen. When a pen is said to be my best friend. Now, books are my favorite companions. Obviously, books cannot be anybody's companion in the real life. But still, we are personifying. We are giving an human attribute to something, humanoid feeling to something. जहाँ पे हम humanoid feeling देते हैं, वहाँ पे हम एक exaggerate कर रहे हैं feeling को, personify कर रहे हैं feeling को. जैसे the stars winked at us from the distant. We have seen a night कि stars blink कर रहे होते हैं. पहले तेज
मतलब ब्लिंक करते हैं, फिर एकदम से छोटी सी रोशनी आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टार्स ऐसे ब्लिंक कर रहे हैं, ऐसे पलके झपका रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल हम लोग ऐसा लिखते हैं इन राइटिंग्स दैट स्टार्स आर विंकिंग। नाउ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स इवेंट छोड़ दो तुम, आईटीएम के इवेंट के अलावा भी पैराडॉक्स होता है, जिसे हम फिगर ऑफ स्पीच में देखते हैं। पैराडॉक्स एक ऐसी सिचुएशन और सेंटेंस है जहाँ पे एक ऐसा सच होता है जो साउंड करता है इम्पॉसिबल और कॉन्फ्लिक्टिंग। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, मेन वर्क टुगेदर, वेदर दे वर्क टुगेदर और अपार्ट। मेन साथ में काम कर रहे हैं बट वो साथ में काम भी नहीं कर रहे हैं, एक कॉन्फ्लिक्टिंग सेंटेंस देता है। ऑक्सीमोरॉन एक एक्सप्रेशन है जहाँ पे दो ऑपोजिट, एक ही वर्ड है, एक ही सेंटेंस है या एक ही वर्ड है, उसके ऑपोजिट जो होता है ना, जैसे हमने एक हाई ले लिया तो हाई का ऑपोजिट लो हो गया, तो हमने हाई लो एक साथ लिख दिया। एक बिटर ले लिया हमने, एक स्वीट ले लिया, तो एक ही वर्ड है जिसके ऑपोजिट मीनिंग्स है, दो ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड है, वो एक ही सेंटेंस में आकर कर रहे हैं एक्सप्रेशन को कॉन्फ्लिक्टिंग बनाने के लिए, ओपिनियन और थॉट्स देने के लिए। कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स होते हैं, ऑक्सीमोरॉन कंबाइन करते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को, जैसे इट वॉज अ बिटर स्वीट एक्सपीरियंस, लाइक व्हेन वी गो टू पार्टी विद अ फ्रेंड हु इज वेरी बोरिंग बट ही इज अ गुड फ्रेंड। तो अब हम उसे उस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, इट वॉज अ बिटर स्वीट पार्टी, मीन्स स्वीट वहाँ पे एक अच्छे के लिए कि हाँ ही इज अ गुड फ्रेंड, और बिटर वहाँ पे इसलिए यूज होगा क्योंकि ही इज अ वेरी बोरिंग फ्रेंड इन अ पार्टी। सो दिस इज एन एग्जाम्पल। एंटीथेसिस ले लेते हैं, इट इन्वॉल्व्स टू कॉम्पोनेंट्स इन ऑपोजिशन एट द सेम। टू कॉम्पोनेंट्स ऐसे जो ऑपोजिशन दे रहे हैं एट द सेम टाइम। नो पेन नो गेन, देयर इज अ सिंगल सेंटेंस विथ टू डिफरेंट ऑपोजिशंस। No pain and no gain. Pain and gain have no relation between them. There is no relation between the word pain and gain. They're both the different words. But इसमें they follow a parallel structure and the same grammatical structure. जैसे men proposes, God disposes. What is happening here? Men proposes, God disposes. Men and God completely different entities. स्टिल हम ऐसा एक कॉन्फ्लिक्टिंग दे रहे हैं, एक ऑपोजिशन, एक ऐसी कॉम्पोनेंट्स रख रहे हैं जो ऑपोजिशन दे रहे हैं एट द सेम टाइम। एक जो रिदमिक राइटिंग होती है ना, वेयर यू वांट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ ऑल्सो, यू वांट टू कंपेयर थिंग्स, तो वहाँ पे तुम रिदमिक राइटिंग में ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। दे उसकी कंडीशन ये होती है कि दे शुड बी पैरेलल एंड दे शुड हैव सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। एलिट्रेशन एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस होता है टू साउंड्स इन विच टू साउंड्स आर एडजेसेंट एंड रिपीटिंग। टिकटॉक, कोको कोला, यहाँ पे देखो एक ही वर्ड में रिपीटेशन ऑफ द वर्ड आ रहा है। बेटी बेक बंस बिसाइड्स बैकन्स। अब यहाँ पे बी 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 बी, what is alliteration? The repetition of the words in the starting of the phrase, in the starting of the word. They're commonly found in poems. Alliteration तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा poems में ही दिखेंगी, नॉर्मल राइटिंग्स में alliteration का यूज़ बहुत कम होता है। लेक्चर 2 पे आ जाते हैं। लेक्चर 2 में एसोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स एंड सिबिलेंट्स, ये तीनों चीज़ें एलिट्रेशन के पार्ट्स होते हैं। एलिट्रेशन फर्दरली डिवाइडेड होता है 3 अलग-अलग पार्ट्स में। अब एलिट्रेशन को हटा के दीज ऑल 3 हैव देयर ओन मीनिंग्स। एसोनेंट्स यूज़ होता है रिपीटेशन ऑफ द वोवल साउंड्स में, कॉन्सोनेंट्स रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स में, और सिबिलेंट्स यूज़ होता है स्पेसिफिक वर्ड साउंड्स में। जैसे दो वर्ड साउंड्स हैं तो सिबिलेंट्स यहाँ पे यूज़ होता है। एग्जाम्पल देख लो, जैक एंड जिल वेंट अप टू द हिल, ये कंप्लीट एक सेंटेंस है, जैक जिल हिल, ये तीन को पॉइंट आउट करो। इसमें यू गेटिंग जैक एंड जिल, सेंटेंस के स्टार्टिंग में यू गेटिंग योर वोवल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द एंड। जब कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड में लग जाते हैं तो एक राइमिंग वर्ड क्रिएट होता है, एक राइमिंग एक सेंटेंस क्रिएट हो जाता है। टू कूल फॉर द स्कूल, ये भी हो गया राइमिंग सेंटेंस। कैसे? ऊल ऊल। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, repetition of the vowel sounds including the repetition of the rhyming sounds, consonant sounds. आयरनी पे आ जाओ। सिंस चाइल्डहुड वी आर लिसनिंग की आयरनी क्या होती है, एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा सच सेंटेंस, एक ऐसा ट्रुथ सेंटेंस जो रियलिटी से एग्जैक्ट ऑपोजिट है पर वो सच है। जैसे माई सिस्टर गेट्स रियली स्केर्ड एट द साइट ऑफ ब्लड, शी इज़ अ नर्स। इफ शी इज़ अ नर्स एंड हाउ कुड शी बी स्केर्ड विद द ब्लड, बट शी इज, दैट इज, ये एक सच है जो एग्जैक्ट ट्रुथ से एग्जैक्ट अपोजिट है, बट वो सच है। द स्नोबॉल फाइट्स वर रीशेड्यूल्ड बिकॉज ऑफ हेवी स्नोफॉल। हेवी स्नोफॉल के कारण स्नोबॉल फाइट रीशेड्यूल कर दी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। स्नोबॉल फाइट हो ही नहीं सकती विदाउट हेवी स्नोफॉल। पन पे आ जाओ। पन इज द यूज ऑफ अ वर्ड इन विच दैट इन
यूज ऑफ अ वर्ड इन अ वे दैट इट हैज टू मीनिंग्स। अब ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, बट इट्स नॉट वेरी टफ। व्हाट इफ आई डोंट नो व्हाट इज एपोकेलिप्स मीन्स एंड इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हम सब जानते हैं कि एपोकेलिप्स का मतलब क्या होता है। एपोकेलिप्स का मतलब एंड होता है, बट यहाँ पे कह रहे हैं कि आई डोंट नो व्हाट इज एपोकेलिप्स एंड लास्ट में इन्होंने एड्रेस कर दिया इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स एक ही सेंटेंस के दो डिफरेंट मीनिंग हो गए। ये आ रहा है इसमें, जक्सटापोजिशन में आ जाओ। जक्सटापोजिशन टू ऑपोजिट आइडियाज हैं जो एक के बाद एक प्लेस होता है। जैसे ऑन इज फेयर एंड वॉर इन लव, ये हमने ऐसे सुना हुआ है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो दो ऐसे सेंटेंसेस हैं जो एक दूसरे के बाद प्लेस हो रहे हैं और एक दूसरे के बाद प्लेस होके सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बता रहे हैं। लव एंड वॉर दोनों में ही यू गॉट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, सब जानते हैं ऑब्वियसली, वी ग्रोन अप्स। अ लिविंग डेड पर्सन जैसा कुछ नहीं होता है। स्टिल ऐसा सेंटेंस दिया जाता है व्हेन अ पर्सन इज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड सिचुएशन और वेरी बैड मेंटल स्टेट, तो उसे कह देते हैं हम लिविंग डेड पर्सन, मतलब वो जिंदा है बट ही इज नॉट गोइंग थ्रू अ गुड कंडीशन। सिनेक्डॉक एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जिसमें एक ही पार्ट पूरे सेंटेंस का, पूरे फुल सेंटेंस में एक ऐसा पार्ट होता है जो पूरे रिप्रेजेंट को, वो पूरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर देता है। हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन, ही फेल फास्ट एस्लीप ऑन द व्हील्स। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या वो व्हील्स पे सो गया था, मतलब ही फेल फास्ट ऑफ द एस्लीप ऑन द व्हील्स। तो ऐसा सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो, हाउ मेनी ऑफ यू वुड कम फॉर ट्रैकिंग, कैन वी हैव अ हेड काउंट। ऑब्वियसली तुम जाकर किसी का हेड नहीं काउंट करोगे, किसी के सर नहीं गिनोगे। इट्स अबाउट हेड काउंट इज रिप्रेजेंटिंग पीपल। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ऑफ यू, मतलब कोई ऐसा पूछ रहा है कि कितने तुम में से कितने लोग ट्रैकिंग के लिए आओगे। सेम चीज़ है, एग्जाम्पल्स तुम खुद से पढ़ लेना। एनाफोरा क्या है, एनाफोरा में तुम लोग ऐसे समझो कि देयर इज एन एग्जाम्पल इन हिंदी, हम दो हमारे दो। तो इसमें क्या आ रहा है, दो और दो एक साथ रिपीट हो रहा है। द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड is called as a complete word, ठीक है, is called as anaphora. Stay home, stay safe. तो यहाँ पे stay and stay are getting repeated. Metonymy. Metonymy क्या है? Metonymy refers to the use of the name of one thing for another. जैसे यहाँ पे देखो, the White House wished all Indians on the occasion of Diwali. Obviously, the White House won't wish you. White House की walls won't wish Indians the occasion of Diwali. White House मिलता है President of USA को। तो यहाँ पे वी कैन रिलेट दिस और वी कैन अंडरस्टैंड बाय वाइट हाउस कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए विश कर रहे हैं इंडिया को हैप्पी दिवाली करके। ऐसी एग्जाम्पल्स देख लेना तुम लोग। लिटोट्स क्या होता है, हमने पूरे एलिट्रेशन में हमने नेगेटिव से कुछ नहीं देखा कि कहीं पे स्पेसिफाइड नेगेटिव सेंटेंसेस हो। लिटोट्स में क्या होता है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट देते हैं एक पॉजिटिव रेफर करने के लिए, टू से समथिंग पॉजिटिव। जैसे डिड यू मेक दिस डिश, नॉट बैड। अब यहाँ पे हम ऐसा भी कह सकते थे कि डिड यू मेक दिस डिश, इट्स रियली गुड। नहीं, लेकिन हमने क्या किया, एक नेगेटिव कमेंट किया पॉजिटिव स्टेटमेंट देने के लिए। हाइपरबोले क्या होता है, दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच एम्फसाइज अ थिंग बाय अफिक्सिंग एग्जैजरेटिंग एलिमेंट। अब एग्जैजरेटिंग एलिमेंट से तुम क्या समझो कि देयर इज अ पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास। सो अब इसमें तुम कैसे समझ सकते हो, जैसे एक ही क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस कहीं नहीं होता। पिन ड्रॉप साइलेंस में इंसान डाइज, लाइक a human cannot hear his own heartbeat. तो ऐसे साइलेंस में nobody can stay alive. So there was a pin drop silence in this class. So अभी ये एग्जैजरेटिंग एलिमेंट है यहाँ पे। हम एक क्लास इतनी साइलेंट है कि हम उसको एग्जैजरेट कर रहे हैं, अगर पिन भी गिर जाए तो उसकी भी आवाज़ आए, इतना साइलेंस है। अब यूफेमिज्म, इसको तुम एम्बेलिशमेंट इन अ लैंग्वेज होता है। जैसे कोई भी एम्बैरेसिंग चीज़ या अनप्लीजेंट चीज़ आ गई, जैसे somebody डाइज और somebody फॉल्स इल, तो हम ऐसे वर्ड्स यूफेमिज्म में यूज़ करते हैं जहाँ पे हम एम्बैरेसिंग और अनप्लीजेंट चीज़ें विदाउट डायरेक्टली बोल सकते हैं। जैसे व्हेन समवन डाइज तो हम उसकी जगह यूज़ ले लेते हैं पास्ट अवे। जैसे टेम्परेरी वर्कर के कारण, जैसे हम लोग टेम्परेरी वर्कर्स हायर करते हैं फॉर अ मंथ और डेज, तो उसमें टेम्परेरी की जगह हम यूज़ कर सकते हैं गेस्ट वर्कर्स। इंस्टेड ऑफ फायर्ड की जगह हम यूज़ कर सकते हैं डाउन सीज्ड। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, तो यू कैन रीड। लेक्चर 3 पे आ जाओ। लेक्चर 3 पे वी आर गेटिंग डिस्कोर्स, ठीक है। अब डिस्कोर्स मार्कर्स इन स्पीच क्या होता है, डिस्कोर्स मार्कर्स आर essentially connectors that joins ideas and sentences and phrases. See, example पे आओ तुम। So
I want to tell you something. Scenario to demonstrate discourse markers in spoken or informal. See, discourse usually informal में ही use होता है. Usually से use ही informal में होता है. अब इसमें डिस्कोर्स मार्कर्स में क्या हो रहा है, एक ऐसा वर्ड है जो कंप्लीटली दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है. अब इनफॉर्मली हम लोग कैसे, सो आई वांट टेल यू समथिंग. ओह, व्हाट इज इट? यू नो, आई बॉट अ विला इन ECR लास्ट वीक. आई मीन, like, there's an EMI. So, like, you are saying a few of the words which are like joining sentences. तो इसे डिस्कोर्स मार्कर्स कहते हैं. एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारी, यू कैन जस्ट गो थ्रू देम. Additional uses of respective discourse markers. So additional uses क्या क्या हो सकते हैं? Discourse markers to express opinions. Yup, that's how I like to be. It's like कि discourse markers में तो opinions पे express कर रहे हैं, positive opinions आ रहे हैं, negative opinions आ रहे हैं. So they are used in that. Discourse markers and conversation starters. जैसे you are going to talk to someone, like when I say about my name with them before starting this video. So first of all, my name is Kumal. So first of all is conversation starter. Discourse markers and adding information. See, when you add a complete sentence, तो उसके बीच में you add like kind of few words, which is like adding the whole sentence. This is to my knowledge. It's like adding an information. On the top of that, adding an information. Discourse markers में क्या होता है? There are many types of it. See, discourse markers for adding emphasis. अब see, adding emphasis का मतलब क्या हुआ? Actually, here's the thing. As a matter of fact, in fact, apparently, I'd go as far as to say, hands down, this is hands down the best pizza I have had in my life. Apparently, he is the one who spilled the beans. डिस्कोर्स मार्कर्स आर गिविंग एग्जाम्पल्स. जैसे अब कंप्लीट सेंटेंस में एग्जाम्पल दे सकते हो तुम इससे. जैसे वॉलनट्स आर गुड फॉर द हार्ट हेल्थ. यू कैन सी दिस. द डिक्रीज इन LDL. जब हम कोई चीज़ का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो उसमें भी डिस्कोर्स मार्कर्स कैन प्ले अ गुड रोल. डिस्कोर्स मार्कर्स फॉर क्लैरिफाइंग. हमने एक ही सेंटेंस को जब हमने क्लैरिफाई करने का सोचा, डिड यू गेट दैट? लाइक कोई भी क्वेश्चन में कोई भी हम बात कर रहे हैं, अब मैं से यू अंडरस्टैंड दिस, लाइक आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस होल कंसेप्ट व्हाट एवर आई एम टीचिंग यू, आर यू गेटिंग दिस? सो जो ये आर यू गेटिंग दिस एंड में आ रहा है, दैट इज अ क्लैरिफाइंग डिस्कोर्स. अब यहाँ पे हमने एक और ले लिया डिस्कोर्स मार्कर्स फॉर contrast. See, when you're speaking, then although at the same time, and apart from this, these all words are called as contrasting. Discourse markers for concluding, overall, in a nutshell, all in all. These are all concluding sentences. मतलब जिस चीज़ से तुम conclude कर रहे हो किसी चीज़ को. अभी आ जाओ लेक्चर 4 पे. लेक्चर 4 क्या है? लेक्चर 4 में 2 ही चीज़ें हैं, एक रिदम है, एक पिच है. तो यहाँ से समझो, रिदम का मतलब होता है ताल, लय. मतलब रिदम हमने बचपन से सीखा है कि रिदम क्या होती है. रिदम एक साउंड होती है कंपेयर्ड विद कंपेरेबल नंबर एंड पैटर्न्स इन स्टेप टू डांस. ठीक है. रिदम इज अनदर नेम ऑफ रिपीटेड पैटर्न्स ऑफ साउंड एंड अरेंजमेंट ऑफ सिलेबल्स इन यूनिट ऑफ स्पीच. सिलेबल मैंने बताया था, मैंने नहीं बताया एक्चुअली लास्ट इंग्लिश वीक में. सिलेबल में हमें क्या बताया था कि जैसे एक ही वर्ड होता है ना, उसमें एक ऐसा सिंगल वर्ड जो 2 वर्ड्स को टूट-टूट के बन रहा है. तो उस वर्ड को बोलने का जो तरीका होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज़ रिदम. किसी भी चीज़ को बोलने की एक रिदम होती है. अब जैसे रीड अलाउड विथ इटैलिसाइज्ड वर्ड्स एंड स्ट्रेस्ड. सी, यहाँ पे इटैलिसाइज्ड जो भी वर्ड है, उसमें जैसे आई इटैलिसीज्ड है. ठीक है. अब यहाँ पे थॉट है, फिर योर है, फिर ब्रदर है, फिर वॉज है, फिर बस है. सो यस, यहाँ पे स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ कि हमें एक ही वर्ड को इतना स्ट्रेसली बोलना है कि जो पूरा इम्पैक्ट आ रहा है, जो कंप्लीट इम्पैक्ट आ रहा है, वो उस सिंगल वर्ड से आ जाए. जैसे आई थॉट, लाइक आई थॉट योर ब्रदर वॉज अ कंडक्टर. 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 मतलब जो भी वर्ड इटैलिसीज है यहाँ पे, वहाँ पे हमने स्ट्रेस डाला हुआ है बोलते वक्त. पिच पे आ जाओ. पिच क्या होता है? सबको पता है आज की डेट में. इफ़ यू आर हियरिंग म्यूजिक, इफ़ यू आर इनटू म्यूजिक, और जो भी म्यूजिक गाने सुन रहा है उसे पता है पिच क्या है, हाई एंड लो पिच. पिच के सिर्फ 2 ही मार्कर्स होते हैं, हाई पिच और लो पिच. पिच इज एन इम्पॉर्टेंट component of accentuation, prominence, both the level of individual words
at the level of longer utterances. ठीक है, यहाँ पे यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। ये तुम एग्जाम्पल्स देख लेना, एक्टिविटीज़ में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये एक लेडी है, शी इज़ अ सिंगर, शी संग अ सॉन्ग like in 1956 American English film में The Man Who Knew To. So you can just go and hear this song on something YouTube or anything. Activities हैं, you can perform by yourself. तुम्हें पता चलेगा कि पिच के यूजेस कैसे होते हैं, पिच कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होती है। हाई एंड लो पिच लाइक सी, ये चीज़ हमने बचपन से पढ़ी हुई है कि हाई और लो पिचेस क्या होते हैं। सो इट्स वेरी इजी। लेक्चर 5 पे आ जाओ। Intonations in English. Intonation is a feature of pronunciation. Whenever you're pronouncing something, okay, like when I am saying English, it might be different from what you speak. Whenever I'm saying or pronouncing a word, that can be different by your opinion, by anybody's opinion, or by anybody's like way of speaking. So, annotations is a feature of pronunciation. It refers to melody. It gets created by changing the pitch of the voice. Whenever I'm speaking, like when I get angry, I will speak louder. When I'll be happy, I'll speak in a medium pitch. When I'll get sad, I'll speak in a very low pitch. So, this is like a melody. Other feature is like stress, accent, and rhythm. Accent is the way of speaking. Stress is when you put your complete energy into a single a word in a sentence. A rhythm is what you hear. Like rhythm is way of speaking, attaching words, and just making a flow. Like rhythm, flow, lay, tal, you know. So it is related on how we see something. अदर फीचर्स इसके क्या होते हैं कि स्ट्रेस बता दिया मैंने, प्रोमिनेंस ऑफ अ सिलेबल। जो भी स्ट्रेस कैसे पता चलता है, जब हम सिलेबल्स पढ़ते हैं। अगर तुमने लास्ट इंग्लिश वन में सिलेबल्स देखे हुए हैं तो यू नो कि जैसे ये जो वर्ड है फीचर्स, ये 3 वर्ड्स में टूट जाएगा, ये जो 3 सिलेबल में टूट जाएगा। तो ऐसे यू कैन नो लाइक हाउ व्हाट वेयर यू हैव टू स्ट्रेस इन अ सिंगल वर्ड। The types of intonations is rising, falling, flat. We realize it from the way we speak. यहाँ पे completely spoken पे आई है. I don't think इसमें से you can get a question. So yes, intonations में आ जाओ तुम. Intonations and meanings. Grammatical marks beginning, end, clauses, sentence, statement, question, resolving ambiguity. Attitudinal helps in identify shock, surprise, anger, sarcasm, pleasure, interest. इसमें क्या है कि एक एक्सप्रेशन शो हो रहा है यहाँ पे, डिफरेंट शॉक इज एन एक्सप्रेशन, सरप्राइज इज एन एक्सप्रेशन, एंगर इज एन एक्सप्रेशन, sarcasm is an expression. Discourse to identify conclusion, focus part of message, psychological, easy to memorize, things to notice. इसमें क्या है कि this is a subconscious process. मतलब obviously whenever you're speaking and you are focusing on rhythm and pitches, so वहाँ पे एक subconscious process आ रही है, वो चीज़ें अपने आप हो रही हैं, you just don't have to explain anything. अभी let's see, हो गया है I guess lecture 7 में why इंग्लिश के मेजर्स बताएं कि वाई यू हैव टू लर्न इंग्लिश, लैंग्वेजेस इन सोसाइटी। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं यार, लाइक दिस इज़ अ पेज यू हैव टू रीड बाय योरसेल्फ व्हिच इज़ नॉट इवन इम्पोर्टेंट, आई डोंट थिंक सो इट्स एन इम्पोर्टेंट पेज। इंग्लिश इन इंडिया, इंडियन इंग्लिश, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जिस भी कंट्री में तुम रहते हो यू गेट योर ओन प्रोनाउंसिएशन ओवर देयर। रशियन इंग्लिश इज डिफरेंट, इंडियन इंग्लिश इज डिफरेंट, ब्रिटिश इंग्लिश इज डिफरेंट, यूके इंग्लिश इज डिफरेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट, राइट? अमेरिकन इंग्लिश इज completely different, African English is different. तो यहाँ पे बताया गया है कि wherever you live, तो you just इंडियन इंग्लिश में क्या है ना, हिंदी और इंग्लिश का मिलाप है। हिंदी जैसे बोलने का तरीका होता है वैसे ही हम इंग्लिश भी बोल देते हैं। द वे आई एम स्पीकिंग इन हिंदी, आई विल स्पीक इन इंग्लिश in the same flow, which is happening here. Okay, so last slide is this, and here your week 1 is completely done, completely over. Okay, so you just, any doubts? If you have any doubts, you can just pin in the comment, and I'll be answering everything. Otherwise, I've covered each and every concept
everything in this video. Thank you and have a good day.